হ্যালো, হ্যাঁ, evening, sir. এসব শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার sir. শোনা যাচ্ছে স্যার। ওনার বায়োডাটা কে পড়বে? নীতি ম্যাডাম? Sir, হ্যাঁ নীতু ম্যাডাম। হ্যাঁ, স্যার। নীতু ম্যাডাম পড়বেন স্যার। ঠিক আছে, অল্প অল্পের মধ্যে সঠিক হবে। হ্যাঁ, অল্পের আচ্ছা। মধ্যে সঠিক হবে, ঠিকভাবে বলবে। Dr. Deva Prasad, how are you? Yes, sir. নমস্তে, নমস্কার স্যার। नमस्कार, fine, sir. কেমন আছেন? ভালো আছি স্যার, ভালো আছি স্যার। আপনার ओके आशीर्वाद, ओके। आपका आशीर्वाद हाँ, मिले आपने सर। आशीर्वाद भगवान का, that is more important, and now I think Yes, sir. you can start, please, so that I can spend Okay. more time on the lecture. Yes, yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Kishore also নীতু has দি, joined. Yes, Okay. sir. Yes, sir. নীতু দি, তুমি একটু দেখবে জয়েন গুলো যেগুলো বাকি থাকছে এগুলো এখন একটু জয়েন করে নেবে, যেগুলো হোল্ডে আছে তোমাকে কোহোস্ট করেছি। আমি শুরু করছি। Okay. ঠিকভাবে করবি। गुड सर इवनिंग। सर अगर आप अपना वीडियो ऑन करें तो अच्छा होगा, हमारे सारे बच्चे आपको देख पाएंगे सर। ये हम्बल जी, सर। रिक्वेस्ट है। लेक्चर जब होगा तब चालू करेगा। गुड इवनिंग। Good evening, namaskar. नमस्कार, प्रणाम सर। आज चलो, सभी का गुरुजन का आशीर्वाद से हम 2023 में 13 अप्रैल को इस सुस्थ देहे सुस्थ मन এই নিয়ে আলাপন इसका शुभारंभ किए थे इसी साल, जिसका आज 40 एपिसोड में हम सभी एकत्रित हुए हैं। हम अरे विद्यार्थी और हम सभी इतना सौभाग्यशाली है कि हमारा इस साल का लास्ट सेशन में आज हमारे सबका बीच डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर के रूप में आज का मुख्य आलोचक अध्यापक डॉक्टर अरुण कुमार उपल सर को हम सभी का आशीर्वाद के आपने स्वीकार किया और हमारे सबको अपना कीमती समय दे के हमारे साथ पधारे हैं। हमारे महाविद्यालय की ओर से और हमारे डिपार्टमेंट की ओर से सर को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आज का इस शुभारंभ करने के लिए तथा स्वागत बुद्धि देने के लिए हमारे अध्यक्ष डॉक्टर देव प्रसाद साहू, जो कि सेवा भारती महाविद्यालय का प्रिंसिपल है, और इस कार्यक्रम का जो कर्णधार है, उनको हम आमंत्रित करता हूं। सर, आप अपना स्वागत भाषण देके इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। नमस्कार, प्रणाम सर। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং। সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এই নিয়ে আলাপন। পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা ঝাড়গ্রাম, সেই ঝাড়গ্রাম জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়, সেই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে ডক্টর কেশবচন্দ্র গোপ, ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস, ডক্টর নিতু দত্তা সহ শারীর শিক্ষা বিভাগের চরম উদ্যোগে আমাদের এই আলাপন। টুডেজ এপিসোড ইজ 40th এপিসোড। আজকের দিনে এই আলাপনে উপস্থিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং যাদের জন্য এই অনুষ্ঠান, সেই শারীর শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের, বিদ্যালয়ের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সবাইকেই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। আর স্বাগত জানাচ্ছি পূর্ববর্তী যারা বক্তা ছিলেন, বিভিন্ন সময়ে আমাদের এই আলাপনকে তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদেরকেও আমি সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। Now I would like to my deeply heartfelt
gratitude to our distinguished speaker, Dr. Professor Arun Kumar Uppal Mahashoy. He was the former Vice Chancellor of Jiaji University, former Dean LNIP Gwalior, and presently he is Chairman of Physical Education Foundation of India, PEFI. He is a famous personality not only in India, all over world in the field of physical education and sports sciences. I would like to my deeply heartfelt gratitude and welcome sir. He has written so many books in the field of physical education and sports. We eagerly waiting for his valuable lecture. নমস্কার, সবাইকে আবার স্বাগত জানিয়ে আমার এই স্বাগত ভাষণ শেষ করছি। নমস্কার। ओवर टू। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको। थैंक यू आपका सर। शुभारंभ में हमारा इस 14 एपिसोड का शुभारंभ हो चुका है। ऐसा मानकर आज का जो हमारा मुख्य आलोचक है उनको बारे में हमारा विद्यार्थी के साथ परिचय कराने के लिए हमारे महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विषय में अध्यापिका डॉक्टर नीतू दत्ता मैम को हम आग्रह करता हूं सार के बारे में हमारा छात्र छात्री को अवगत कराएं। डॉक्टर नीतू दत्ता मैम। थैंक यू वेरी मच केशव। नमस्कार सर, मेरा शत शत प्रणाम आपको। আমি আগে আমাদের বাচ্চাদের বলে দিই কেন স্পোর্টস ট্রেনিং আমি পড়াচ্ছি। স্যার এমন একটা মানুষ যেটা আমরা বেসিক থেকে অ্যাডভান্স ওনার বই দিয়েই পড়ছি। আমি একটা শর্ট স্যারের বেশি সময় খাবো না, কেন আজকে স্যারের দিন, আমরা স্যারকে শুনবো, কিন্তু একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন স্যারকে বলি, আশা করি ভালো লাগবে। I'll speak in English. A warm and graceful evening to all our honorable guests, a very renowned professor, a very renowned personality, actually, Professor Dr. Arun Kumar Uppal sir, respected dignitaries, respected teachers, my dear colleagues, all the members of Alapon, and my dear students. I am Dr. Neetu Datta, serving as assistant professor in Seva Bharati Mahavidyalaya. Well, today it is red letter day to me, being I am asked to say something about Dr. Professor Arun Kumar Uppal sir. A.K. Uppal sir need not any introduction. He is a renowned and well-known academician and administrator of our nation. It is great honor and privilege to invite speaker of this evening. Before I take pleasure, I introduce our respected speaker. I would like to express my gratitude to our respected principal, sir, Dr. Devaprasad Sahu, for consistent support and guidance, and also would like to thank the entire technical team of Alapon for planning and executing efficiently and conducting lecture on very much relevant issues. It gives me immense pleasure to introduce and welcome Professor Dr. A.K. Uppal sir. Sir is former Vice Chancellor of Jivaji University, as my principals are also told, Gwalior, and Dean LNIP Gwalior. He was the first student to have obtained PhD in physical education from Jivaji University, and he is the only person to hold 2 doctoral degree, that is doctorate in literature and doctorate in science in physical education. He also completed diploma in track and field from world famous sports institute DHFK, Leipzig, Germany, with distinction. He was also headed the Bangladesh Institute of Sports for establishing a department of sports and science. He was also a sole part of national and combined university coaching camps in track and field for several years. Sir is author more than 35 books in physical education on various disciplines and sports sciences. He has also written more than 400 research papers, which has been published in national and international journals. He is the recipient of several awards. He has also been honored with 3-time Life Achievement Award. Presently, he is acting as chairman of PEFI, Physical Education Foundation of India, a national sports promotion organization. Thank you so much, sir, for being with us on the platform of Alapon. Now I request you, sir, to deliver your precious and informative lecture. Over to you, sir. I thank you very much. Dhanyavad.
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे हिंदी में बात करूं. आई कैन आल्सो यूज सम बांग्ला वर्ड्स, बट अगर आपको कहीं भी समस्या हो, प्लीज आस्क ए क्वेश्चन. I will also do one thing. जी I will send to Dr. Neetu Datta my full paper so that later Thank you so much. आप उसको बंगला में ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो लेट मी पोस्ट माय पीपीटी प्लीज. Sir. Are you able to see the PPT? नो सर আমার PPT দেখা যাচ্ছে? না না, স্যার স্যার। এখনো দেখা স্যার Why it is not able? মৃত্যুঞ্জয় জয়েন করেনি কেশব? Now can you see it? हाँ सर यस सर Now it is showing, sir. ओके ओके ओके. जो मेरा लेक्चर है उसका टॉपिक है ट्रेनिंग लोड, जिसको प्रशिक्षण भार बोलते हैं. उस लोड के साथ कैसे खिलाड़ी एडजस्ट होता है, इसको अडाप्टेशन बोलते हैं. और जो ओवरलोड है उससे खिलाड़ी को क्या क्या नुकसान होता है. आपको और भी बहुत लेक्चर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हुए होंगे. अगर जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पूरा सिलेबस है, अगर आप में उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढना हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, दैट टॉपिक विल बी ट्रेनिंग लोड. मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग लोड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसलिए इसके बारे में सब स्टूडेंट्स को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. आप देखिए इसकी परिभाषा क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग लोड? शारीरिक व मानसिक, शरीर से संबंधित और मस्तिष्क से संबंधित जब आप खिलाड़ी को डिमांड्स देते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस की वृद्धि हो पाए, उनकी परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट हो पाए, या वो अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर सके, उसको ट्रेनिंग लोड बोलते हैं. फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड्स प्लेस्ड ऑन द इंडिविजुअल थ्रू ए मोटर स्टिमुलस. आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर डिमांड्स डालते हैं मूवमेंट की शेप में, और वो जो डिमांड्स हैं वो खिलाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, परफॉर्मेंस को अच्छा करने में सहायता करते हैं. उसको हम ट्रेनिंग लोड बोलते हैं. ट्रेनिंग लोड दो प्रकार का है. आउटर लोड होता है जो लोड खिलाड़ी को दिया जाता है, उसको आउटर लोड बोलते हैं. उसका खिलाड़ी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको इनर लोड बोलते हैं. सो ट्रेनिंग लोड दो प्रकार का होता है. आउटर लोड, जो लोड शारीरिक शिक्षक या कोच खिलाड़ी को देता है, और उस लोड का क्या प्रभाव पड़ता है उसको इनर लोड बोलते हैं. नाउ आउटर लोड is of two types. Intensity of लोड की तीव्रता, and volume of लोड का परिमाण. लोड की तीव्रता क्या होगी, लोड का परिमाण क्या होगा. ये आउटर लोड दो भागों में बांटा हुआ है, और जो लोड की तीव्रता है उसको फिर दो भागों में बांट सकते हैं.
इंटेंसिटी ऑफ लोड एंड डेंसिटी ऑफ लोड। इंटेंसिटी ऑफ लोड कितनी है? डेंसिटी होता है दो लोड के बीच में कितना रेस्ट दिया जाएगा, इंटेंसिटी उसका परिमाण क्या होगा, एंड डेंसिटी है दो लोड के बीच में कितना रेस्ट देंगे आप। रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है कि रेस्ट के दौरान ही खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की वृद्धि होती है, उन्नति होती है। सो इंटेंसिटी ऑफ लोड दो भागों में बटा हुआ है, इंटेंसिटी एंड डेंसिटी, एंड वॉल्यूम ऑफ लोड भी दो भागों में बटा हुआ है, दैट इज ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। लोड कितनी देर तक रहेगा और उसके कितने रेपिटेशन किए जाएंगे, ये चारों चीजें आउटर लोड का हिस्सा है। और आउटर लोड कौन देता है? शारीरिक शिक्षक देता है या कोच देता है। जब कोच लोड देगा, ये चारों चीजें इंटेंसिटी, डेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी कोच को निर्धारित करने के लिए, और ये चारों फैक्टर हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग होते हैं। ट्रेनिंग लोड इज एन इंडिविजुअल फैक्टर। ट्रेनिंग लोड हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग होगा, खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार होगा, खिलाड़ी की प्रिपरेशन के अनुसार होगा। सो इंटेंसिटी, डेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार होने चाहिए। और जब खिलाड़ी को आउटर लोड देते हैं, उस आउटर लोड का क्या प्रभाव पड़ता है खिलाड़ी के ऊपर, उसको इनर लोड बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ द आउटर लोड ऑन द स्पोर्ट्स पर्सन इज कॉल्ड इनर लोड। और जब आपने आउटर लोड दिया, खिलाड़ी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसके लक्षण दिए हुए, सिम्टम्स। खिलाड़ी को पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। कलर ऑफ द स्किन, खिलाड़ी की स्किन रेड हो जाती है, बिकॉज रक्त का संचार होता है, ब्लड का संचार होता है, तो स्किन रेड हो जाती है। फैटीग, खिलाड़ी थक जाता है। देन उसका क्वालिटी ऑफ मूवमेंट जो है उसमें कम, जब वो थक जाता है तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट गिर जाती है, उसको मनोयोग में कमी आती है, कंसंट्रेशन में कमी आती है, और उसका जो कोऑर्डिनेशन है, तालमेल, नर्वस सिस्टम और उसकी जो मसल्स है, कोऑर्डिनेशन, उसका तालमेल जो है वो कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोच आउटर लोड देता है खिलाड़ी को, तो कोच की नजर ये जो मैंने लक्षण बताए हैं आपको, उसके ऊपर होनी चाहिए कि खिलाड़ी को पसीना आएगा तो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की वृद्धि होगी, उसकी स्किन रेड होगी तो परफॉर्मेंस की वृद्धि होगी, खिलाड़ी थकेगा तो परफॉर्मेंस की वृद्धि होगी, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट गिरेगा, वो थक गया, परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट होगी, उसके मनोयोग में कमी आएगी और उसके कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी। जो कोच आउटर लोड देता है, जब ये लक्षण नजर नहीं आएंगे तो लोड उसके लिए कम है, और लक्षण ज्यादा हो जाएंगे तो लोड खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा है। सो हर कोच को, हर शारीरिक शिक्षक को इन लक्षण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हर प्लेयर के बारे में। अगर आपके पास 10 खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको उन 10 खिलाड़ियों के बारे में, इन लक्षण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। खिलाड़ी ए, उसके क्या लक्षण है, खिलाड़ी बी, उसके क्या लक्षण है, खिलाड़ी सी, उसके क्या लक्षण है। हर कोच को, हर फिजिकल एजुकेशन टीचर को, जितने भी खिलाड़ी उसके अंदर ट्रेनिंग करते हैं, उनके बारे में, उनके लक्षण की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये लक्षण अधिक हो जाए तो खिलाड़ी की समस्या, लक्षण कम रह जाए तो खिलाड़ी के ऊपर ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं आएगा, उसकी परफॉर्मेंस की उन्नति नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? खिलाड़ी ग्राउंड पे ट्रेनिंग करता है तो कोच की नजर इन इनर लोड के लक्षण के ऊपर होनी चाहिए।
ये लक्षण बताएंगे कि जो कोच ने आउटर लोड दिया है वो खिलाड़ी के लिए सही है कि नहीं, वो खिलाड़ी के लिए ठीक है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट इज ट्रेनिंग लोड। दो प्रकार का प्रशिक्षण भार दो प्रकार का होता है। आउटर लोड जो कोच देता है, इनर लोड उस लोड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये फीचर्स हैं ट्रेनिंग लोड के। और इधर देखिए खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की वृद्धि कैसे होती है, उन्नति कैसे होती है जब वो ट्रेनिंग लोड लेता है। इसको बोलते हैं अडाप्टेशन प्रोसेस, अनुकूलन प्रक्रिया। जब कोच खिलाड़ी को लोड देता है, अगर खिलाड़ी उस लोड के साथ एडजस्ट कर जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस की वृद्धि हो जाएगी, परफॉर्मेंस की उन्नति हो जाएगी। लेकिन इस अडाप्टेशन प्रोसेस की 3 कंडीशंस है। 3टा कंडीशंस आछे ओ कंडीशन का पालन करते होवे। नंबर 1, ट्रेनिंग लोड हैज टू बी एज पर द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। खिलाड़ी की लोड लेने की क्षमता के अनुसार ट्रेनिंग लोड देना चाहिए। ट्रेनिंग लोड कम होगा, उन्नति कम होगी। ट्रेनिंग लोड ज्यादा हो जाएगा तो खिलाड़ी को समस्या हो जाएगी। तो इसलिए खिलाड़ी के ट्रेनिंग लोड को कैलकुलेट किया जाता है। खिलाड़ी को कितना लोड देना है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसके हिसाब से खिलाड़ी को लोड दिया जाता है। सो जो खिलाड़ी का ट्रेनिंग लोड होगा वो खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। नंबर 2, लोड और रिकवरी। प्रशिक्षण भार और विश्राम दोनों में सही अनुपात होना चाहिए। रिकवरी पीरियड शुड बी इन प्रोपोर्शन टू ट्रेनिंग लोड। जो आप लोड के बीच में उसको रेस्ट देंगे, उसका ट्रेनिंग लोड के साथ होना चाहिए। एंड नंबर 3, लोड एंड रिकवरी प्रोसेस should be repeated for certain period। जो लोड एंड रिकवरी दे रहे हैं उसको 10 से 20 दिन तक रिपीट करना पड़ता है। मतलब क्या है, जो एक नया खिलाड़ी है, बिगनर है, उसका एडजस्टमेंट लोड के साथ 10 दिन में हो जाएगा। जो इंटरमीडिएट लेवल का खिलाड़ी है, 2-3 साल की ट्रेनिंग करी हुई है, उसको 14-15 दिन लग जाएंगे। और जो हाई परफॉर्मेंस के खिलाड़ी हैं, जो 8, 10, 12 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको लोड के साथ एडजस्ट होने में 18, 19, 20 दिन लग जाते हैं। हर लेवल का खिलाड़ी 10 से 20 दिन में लोड के साथ एडजस्ट हो जाता है। अब ये डायग्राम देखिए, जो पहली डायग्राम है, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की उन्नति कैसे होती है। फेज ऑफ लोड, कोच खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार उसकी एबिलिटी को ध्यान में रख के उसको ट्रेनिंग लोड देगा। ये लोड को कैलकुलेट करना पड़ता है। हर खिलाड़ी के लिए लोड को कैलकुलेट करना पड़ता है और वो लोड खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। और फिर लोड के अनुसार रिकवरी दी जाती है। लोड एंड रिकवरी में सही रिलेशनशिप होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड रिकवरी। लोड ज्यादा होगा, रिकवरी कम होगी तो खिलाड़ी को समस्या हो जाएगी। लोड कम, रिकवरी ज्यादा हो गई तो भी खिलाड़ी को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लोड एंड रिकवरी में सही संबंध होना चाहिए, सही रिलेशनशिप होना चाहिए। और जब ये लोड एंड रिकवरी प्रक्रिया 10 से 20 दिन तक चलेगी, मैंने आपको बता दिया 10 से 20 दिन में हर लेवल का खिलाड़ी लोड के साथ एडजस्ट हो जाता है। बिगनर 10, 11, 12 दिन में, इंटरमीडिएट लेवल 14, 15 दिन में, हाई परफॉर्मेंस खिलाड़ी 18, 19, 20 दिन में लोड के साथ एडजस्ट हो जाता है। जब आप लोड को कैलकुलेट करते हैं, रिकवरी को भी उसके अनुसार कैलकुलेट करते हैं, उसको देते हैं 10 से 20 दिन तक,
तो देखिए ऊपर एक कर्व बन गया जहां पे लिखा हुआ है फेज ऑफ सुपर कंपनसेशन। उसकी परफॉर्मेंस, जो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस इस लेवल के ऊपर थी, जब खिलाड़ी इस लोड के साथ एडजस्ट हो गया उसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़ गई, इतनी परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज हो गई। ये परफॉर्मेंस इंक्रीज क्यों हुई? बिकॉज वो तीनों कंडीशन का पालन किया आपने, ऑल द थ्री कंडीशंस वर फॉलोड, दैट इज व्हाई दिस परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड। सपोज 10 से 20 दिन के बाद खिलाड़ी ने ट्रेनिंग बंद कर दी। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो इंप्रूवमेंट हुई है ये स्थायी इंप्रूवमेंट नहीं है, परमानेंट इंप्रूवमेंट नहीं है। आपकी इंप्रूवमेंट हुई, आपने ट्रेनिंग बंद कर दी, कुछ दिनों के बाद ये जो उन्नति हुई थी ये नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। इसकी और इसमें ये ऊंची थी, ये परफॉर्मेंस और कम होगी और कुछ दिनों में उस ट्रेनिंग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर वो ट्रेनिंग को बीच में बंद कर देता है, खिलाड़ी ट्रेनिंग को बंद कर देगा, जो भी उसकी उन्नति हुई है वो उन्नति खत्म होते होते फिर उसी लेवल पे पहुंच जाएगा जहां से उसने ट्रेनिंग शुरू की थी। देयरफॉर सेकंड डायग्राम को देखो, ये खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है। आपने उसको ट्रेनिंग लोड, प्रशिक्षण भार कैलकुलेट करके दिया, लोड के अनुपात में आपने रिकवरी दी, लोड एंड रिकवरी में सही संबंध। 10 से 20 दिन तक इसको फॉलो करोगे और उससे क्या होगा, उसका सुपर कंपनसेशन हो जाएगा। इस लोड का प्रभाव खिलाड़ी के ऊपर आ जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस यहां पे थी, इतनी परफॉर्मेंस की उन्नति हो गई। क्या आपको मेरा एरो नजर आ रहा है? आर यू एबल टू सी द एरो? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, एरो मूव कर रहा है। इतना परफॉर्मेंस उन्नति हो गई। अब क्या हो गया, जब उन्नति हो गई अगले 10 से 20 दिन में इस लोड को बढ़ाना पड़ेगा। दिस लोड विल हैव टू बी इंक्रीज इन नेक्स्ट 10 to 20 डेज। उसके अनुपात में रिकवरी देंगे तो फिर परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। अभी नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। ये लोड देने के दो तरीके हैं, लीनियर, एक लाइन में लोड को इंक्रीज करना। सोमवार आपने लोड दिया, मंगलवार सोमवार से ज्यादा, बुधवार मंगलवार से ज्यादा, बृहस्पतिवार बुधवार से ज्यादा, शुक्रवार बृहस्पतिवार से ज्यादा, एक लाइन में इंक्रीज करते हैं। ये लोड का सिस्टम बिगनर को दिया जाता है, क्यों कोच को मालूम नहीं होता उसकी लोड लेने की क्षमता क्या है। सिर्फ 2 सप्ताह तक इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक लाइन में सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार आहिस्ता आहिस्ता लोड को इंक्रीज करते हैं। फिर 2 से 3 सप्ताह के बाद, जैसे सीढ़ियां देखिए, सीढ़ियां, जैसे सीढ़ियों में लोड इंक्रीज होता है, वो क्या, लोड आपने यहां पे दिया, 10 से 20 दिन तक उस लोड को फॉलो किया, सुपर कंपनसेशन हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। फिर आप 10 से 20 दिन तक लोड देंगे, फिर सुपर कंपनसेशन होगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। फिर 10 से 20 दिन तक लोड देंगे, फिर सुपर कंपनसेशन हो जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सिर्फ 2 सप्ताह तक लीनियर लाइन में होगा। उसके बाद जब तक वो खिलाड़ी रहेगा, 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल, ये सीढ़ियों के माफिक, लाइक स्टेयर्स, उसके लोड को आप इंक्रीज करते जाएंगे। कब तक इंक्रीज करेंगे ये कोई नहीं बता सकता। जब तक उसकी परफॉर्मेंस की उन्नति हो रही है तब तक आप उसके लोड को बढ़ाते रहेंगे और उसका अडाप्टेशन होता जाएगा, उसका सुपर कंपनसेशन होता जाएगा, उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर से बता दूं, ये जो लीनियर इंक्रीज है
ओनली फॉर 2 to 3 weeks। उसके बाद जब तक वो खिलाड़ी रहता है 5, 6, 8, 10, 12, 15 साल, ये स्टेयर सीढ़ियों के माफिक उसकी लोड को आप बढ़ाते रहेंगे, उसकी परफॉर्मेंस की उन्नति होती रहेगी। देन कंडीशंस ऑफ अडाप्टेशन, लोड के साथ एडजस्टमेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि खिलाड़ी की एडजस्टमेंट अधिक हो तो आपको हर खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार लोड देना पड़ेगा। अगर कोच के नीचे 10 खिलाड़ी हैं, उन 10 के 10 खिलाड़ियों का लोड का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा। आप हर खिलाड़ी को सेम लोड नहीं दे सकते। लोड लेने की क्षमता हर खिलाड़ी की अलग अलग होती है। तो अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर हर खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार लोड देंगे तो खिलाड़ी को मैक्सिमम बेनिफिट होगा। फिर इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम के अंदर करेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। लोड की तीव्रता और लोड का परिमाण, इंटेंसिटी होती है लोड की तीव्रता, वॉल्यूम होता है लोड का परिमाण, इन दोनों में सही संबंध होना चाहिए। फिर आपकी अडाप्टेशन मैक्सिमम होगी जब लोड एंड रिकवरी में सही संबंध है। लोड ज्यादा दे देंगे, रिकवरी कम देंगे, खिलाड़ी की अडाप्टेशन नहीं होगी। लोड कम देंगे, रिकवरी ज्यादा दे देंगे, फिर भी खिलाड़ी की अडाप्टेशन नहीं होगी, परफॉर्मेंस की वृद्धि नहीं होगी। लोड और रिकवरी में सही संबंध होना चाहिए। नंबर 4, हाई लोड इज एसेंशियल फॉर मैक्सिमम अडाप्टेशन। खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार जितना हाई लोड देंगे उतनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस की उन्नति होगी। यह हाई लोड जो है ये हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग होगा। आपके पास 12 वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं, 16 फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, हर खिलाड़ी का लोड आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो लोड जो है हाई होगा, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की वृद्धि ज्यादा होगी। जो बिगिनर होता है, नया खिलाड़ी, उसकी एडजस्टमेंट जल्दी होती है। ए बिगिनर गेट्स अडॉप्टेड टू लोड फास्टर। जो बिगिनर होता है उसके ऊपर लोड का प्रभाव जल्दी आ जाता है। मैंने बताया था बिगिनर 10, 11, 12 दिन में उसके ऊपर लोड का प्रभाव आ जाता है। और जो हाई परफॉर्मेंस खिलाड़ी होता है उसके अंदर लोड का प्रभाव आने में 18, 19, 20 दिन लग जाते हैं। तो जो नया लोड होगा उसका प्रभाव खिलाड़ी के ऊपर जल्दी आता है। और नंबर 6, अगर लोड में रिकवरी को लंबा कर देंगे आपका अडाप्टेशन प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा। अगर आप लोड देने के बाद ज्यादा रिकवरी प्रोवाइड करेंगे, 1 दिन ट्रेनिंग करी, 3 दिन ट्रेनिंग नहीं करी, 1 दिन ट्रेनिंग करी, 4 दिन ट्रेनिंग नहीं करी, 1 सप्ताह ट्रेनिंग करी, 2 सप्ताह ट्रेनिंग नहीं करी, तो आपका अडाप्टेशन प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा। जो आपकी परफॉर्मेंस की उन्नति हुई थी वो परफॉर्मेंस गिरनी शुरू हो जाएगी। ये 6 कंडीशंस हैं। अगर आपका अनुकूलन होना है लोड के साथ तो ये 6 कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। अब ये देखिए लोड एंड रिकवरी का रिलेशनशिप क्या है। मैं तीनों कंडीशंस इसमें समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर, वो खिलाड़ी की क्षमता है। ये जो पहली डायग्राम है ये देखिए, एक खिलाड़ी में इसके जितना परफॉर्मेंस है, जितना बड़ा ये ब्लैक है, आपने उसको लोड दिया, लोड के अनुपात में आपने रिकवरी दी, उसको 10 से 20 दिन तक आपने चलाया, उसकी परफॉर्मेंस इतनी थी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। क्यों? ये जो है
फेज ऑफ सुपर कंपनसेशन है। सुपर कंपनसेशन तब होगी जब उन 3 कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। लोड खिलाड़ी के अनुसार, रिकवरी लोड के अनुसार, और 10 से 20 दिन तक उसको फॉलो करेंगे तो सुपर कंपनसेशन होगा। पहले उसकी परफॉर्मेंस इतनी थी, 10 से 20 दिन के बाद तो लोड एंड रिकवरी में संबंध था, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी। जिस लोड के साथ खिलाड़ी का एडजस्टमेंट हो गया वो लोड अब खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ा पाएगा। अब जब ये नेक्स्ट लोड देंगे, दिस लोड, ये लोड इस लोड से अधिक होना चाहिए। ये जो लोड अब मैं दे रहा हूं, ये लोड इस लोड से अधिक होना चाहिए, और ये रिकवरी भी इस रिकवरी से ज्यादा होनी चाहिए। जब ये 10 से 20 दिन आप चलाएंगे, फिर सुपर कंपनसेशन हो जाएगी और उसकी परफॉर्मेंस फिर बढ़ती जाएगी। यहां पे आप देख रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। क्यों? बिकॉज लोड एंड रिकवरी में सही संबंध है, उसकी अडाप्टेशन हो रही है और उसकी परफॉर्मेंस की लगातार उन्नति होती जा रही है। सॉरी, थोड़ी मेरे को कफ हो गई। अब सेकंड डायग्राम देखिए। लोड सही है लेकिन रिकवरी बहुत ज्यादा है उसकी तुलना में। इसका मतलब लोड और रिकवरी में सही संबंध नहीं है। ये खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है, लोड दिया कैलकुलेट करके, लेकिन रिकवरी बहुत ज्यादा दे दी। 10 से 20 दिन फॉलो किया, फिर आपने देखा उसकी परफॉर्मेंस उतनी की उतनी रह गई। क्यों? लोड एंड रिकवरी में सही संबंध नहीं है। रिकवरी ज्यादा है, विश्राम ज्यादा है, लोड कम है। फिर आप खिलाड़ी को लोड देते हो, फिर ज्यादा रिकवरी दे देते हो। वो क्या है? कुछ समय के बाद उसकी परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो जाएगी। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स दिस कंडीशन इज नॉट गुड। दिस इज इम्प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड रिकवरी। लोड एंड रिकवरी में सही संबंध नहीं है। लुक एट द थर्ड डायग्राम। ये खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है। मैंने खिलाड़ी को उसकी क्षमता से ज्यादा लोड दे दिया, बहुत हाई लोड दे दिया, रिकवरी बहुत छोटी दी। लोड एंड रिकवरी में सही संबंध नहीं है। अब क्या होगा? 10 से 20 दिनों के अंदर खिलाड़ी के ऊपर ओवरलोड का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। ओवरलोडिंग होनी शुरू हो जाएगी। जब ओवरलोड होगा, खिलाड़ी की लोड लेने की क्षमता कम हो जाएगी, तो उसको आपने फिर लोड दिया, उससे फिर कम रिकवरी दी, फिर ओवरलोड हो जाएगा, और फिर क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता गिरनी शुरू हो जाएगी। यहां पे परफॉर्मेंस गिर रही है बिकॉज ऑफ ओवरलोड। यहां पे परफॉर्मेंस गिर रही है बिकॉज रिकवरी इज मोर देन द लोड। जो विश्राम दे रहे हैं वो लोड की तुलना में ज्यादा है। दिस इज द ओनली राइट कंडीशन जहां पे लोड एंड रिकवरी में सही संबंध है, इसलिए परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। सेकंड कंडीशन में परफॉर्मेंस गिर जाएगी बिकॉज लोड एंड रिकवरी में संबंध नहीं है। एंड थर्ड कंडीशन में लोड रिकवरी से बहुत ज्यादा है, उसमें ओवरलोड का प्रभाव आ जाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, मैंने बार बार आपको बोला, अब आपको समझ आ गया होगा कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की वृद्धि करने के लिए फेज ऑफ लोड जो प्रशिक्षण भार देते हैं एंड फेज ऑफ रिकवरी जो उसको रिकवरी विश्राम देते हैं,
दोनों में सही संबंध होना चाहिए। अब मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई, लोड कम रिकवरी ज्यादा, सही संबंध नहीं है, परफॉर्मेंस की उन्नति नहीं होगी, लेकिन इसमें ओवरलोडिंग नहीं होगी। ओवरलोडिंग मतलब जब खिलाड़ी को उसकी क्षमता से ज्यादा लोड आप कई दिन तक देते रहते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तो एक खराब अवस्था आ जाती है जिसको ओवरलोड बोलते हैं। जो थर्ड सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, थर्ड सिचुएशन है जहां पे ओवरलोड की समस्या खिलाड़ी के ऊपर आएगी, बिकॉज लोड आपने बहुत अधिक दिया, रिकवरी आपने उसको बहुत कम दी। तो ओवरलोड जो है, आज की थ्योरी के अनुसार ओवरलोड जो है वो खिलाड़ी के लिए नुकसान करता है। खिलाड़ी जोनो ओवरलोड भालो ना, ओवरलोड जब अपनी खिलाड़ी के दिबेन, स्पोर्ट्स पर्सन के दिबेन, किछु दिन मध्य खिलाड़ी जोनो समस्या हो जाए, उनर परफॉर्मेंस आबार बेशी कम होते पार जावे, दिन प्रतिदिन परफॉर्मेंस नेमे जावे, उनर परफॉर्मेंस कम होबे। ओई जोनो ओवरलोड एखन 30-40 বছর আগে এই ওভারলোড প্রিন্সিপাল ছিল, প্রিন্সিপাল অফ ওভারলোড। আর প্রিন্সিপাল থেকে এই ওভারলোড বাইরে হয়ে গেছে, কিন্তু ওভারলোড টপিক স্পোর্টস ট্রেনিং তে আছে খেলাড়ির জন্য, ওনাকে বোঝানোর জন্য কি ওভারলোড স্পোর্টস পারসন জন্য ভালো নয়। That is why this topic is there. वो क्या कहता है, खिलाड़ी की नॉर्मल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाती है जब उसका फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लोड उसकी लोडिंग कैपेसिटी से अधिक हो जाता है। खिलाड़ी का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लोड अगर उसकी क्षमता से अधिक हो जाएगा, एक दिन में ओवरलोड नहीं होता है, 4-5 दिन में लक्षण नजर आते जाएंगे और फिर 10, 12, 15 दिन में ओवरलोड की समस्या हो जाती है। और ओवरलोड खिलाड़ी के लिए नुकसानदायक है। खिलाड़ी जोनो ओवरलोड भालो ना। दैट इज वाई लोड इज टू बी कैलकुलेटेड। हर खिलाड़ी के लिए लोड को कैलकुलेट करना पड़ता है। खिलाड़ी के लिए लोड सही होना चाहिए, उसके अनुपात में रिकवरी भी सही होना चाहिए। जो नौतुन स्पोर्ट्स क्रीड़ा वैज्ञानिक व्हाट दे से, इफ अगर आप खिलाड़ी को ओवरलोड देते हैं, उसका जो मस्तिष्क है, नर्वस सिस्टम, उसमें समस्या पैदा हो जाती है। जो उसका नर्वस सिस्टम है, अगर खिलाड़ी को आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन ओवरलोड देंगे, उसका जो स्नायु तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसमें समस्या पैदा हो जाएगी। और आप सब जानते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो बाकी सारे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। अगर नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो आपके शरीर का कोई भी सिस्टम ठीक काम नहीं कर पाएगा, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम है। नो सिस्टम विल वर्क प्रॉपरली अगर आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ओवरलोड क्या करता है, थोड़े दिनों में नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, तो उससे आपका एनर्जी सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उससे कोई भी बॉडी का सिस्टम सही काम नहीं करेगा। अब आप देखिए,
ओवरलोड के क्या कारण है, ओवरलोडिंग क्यों होती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओवरलोडिंग। देयर आर 4 कॉजेज। আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি? একটু বড় করব? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ দেখুন। স্যার, একটু বড় করে দিলে ভালো হয়, একটু জুম করে দিন। এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। রাইট। বেশি বড় সমস্যা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, একটু ছোট করুন, 1 নম্বরটা দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার ক্লিয়ার। These are what we say causes of overload. Overload কেন হয়? এখানে 4 কারণ দেওয়া আছে। প্রথম, ফল্টি ট্রেনিং লোড। যদি আপনার কোচ और শারীরিক শিক্ষক আপনার লোড ঠিকভাবে ক্যালকুলেট করবে না, আপনার ক্ষমতা থেকে বেশি লোড দিবে, তো ওভারলোড সমস্যা হতে পারে। ফল্টি ট্রেনিং মেথড, যদি ট্রেনিং ভালোভাবে করাবে না তো সমস্যা হবে। নাম্বার 2, লাইফ ফ্যাক্টরস। আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু ফ্যাক্টরস আছে, ওই ফ্যাক্টর জন্য ওভারলোড হতে পারে। and then social factors, সামাজিক কারণ, ওনার জন্য ওভারলোড হতে পারে। and fourth is health factor, যদি আপনার স্বাস্থ্য ভালো না, that can also lead to overload. Now please listen to me very carefully. আমি 4 ফ্যাক্টর জানাইছি আপনাকে, 4 factors which are responsible for overload. Number 1, faulty training method. Number 2, life factors. Number 3, social factors. And number 4, health factors. Now, ভালোভাবে আমার কথা শুনেন। Only first factor is related to training. Second, third and fourth factors are outside training. শুধু প্রথম ফ্যাক্টর ট্রেনিং সাথে সম্বন্ধ আছে, 2, 3 and 4, these 2 factors are outside training. Therefore, training for overload only 25% responsible, 75% ওভারলোড সমস্যা ট্রেনিং থেকে বাইরে আসে। সোশ্যাল ফ্যাক্টর, হেলথ ফ্যাক্টর and your second factor, which is life factors. These 3 factors are outside the training program, but they also are responsible for overload. If you see, number 1, अगर कोच सही रिकवरी नहीं देता, अच्छे लोड से भी ओवरलोड हो सकता है। अगर आप लोड को जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे, लोड से अडाप्टेशन नहीं होगी, एडजस्टमेंट नहीं होगी, ओवरलोड की समस्या हो जाएगी। हाई वॉल्यूम लोड बहुत अधिक with maximum and sub maximum intensity, যদি বেশি লোড দিবেন, লোডের তীব্রতা বেশি রাখবেন, ওভারলোড হয়ে যাবে। Forced technical training, skill without adequate rest, रेस्ट नहीं देंगे, ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग करवाएंगे तो भी ओवरलोड हो सकता है। एक्सेस ऑफ कंपटीशन विद हाई डिमांड्स, যদি খিলাড়ি বেশি কম্পিটিশনতে পার্টিসিপেট করবে, হাই লেভেল কম্পিটিশন, বেশি রেস্ট পাবে না तो ओवरलोड हो जाएगा। एंड वन साइडेड ट्रेनिंग, ओनली स्किल टीचिंग,
only strength development, only speed development every day, only endurance development every day, उसको वन साइडेड ट्रेनिंग बोलते हैं, उससे भी ओवरलोड होता है। ये 6 फैक्टर हैं जो ट्रेनिंग से संबंधित है, जिसकी वजह से आपको ओवरलोड हो सकता है। अब लाइफ फैक्टर्स जिसका ट्रेनिंग से संबंध नहीं है, ट्रेनिंग से बाहर है, इनसफिशिएंट नाइट रेस्ट, आप जितना सोना चाहिए उतने घंटे सोते ही नहीं है, रात भर ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। साइंस कहती है हर खिलाड़ी को रात को 7 से 9 घंटे की नींद होना बहुत कंपलसरी है। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे, 1-1, 2-2 बजे तक घूमते रहेंगे तो समस्या आएगी, रिकवरी नहीं होगी। इररेगुलर डेली रूटीन जो आपका 24 घंटे का रूटीन है, उसको आप सही प्रकार से फॉलो नहीं करते हैं। लग्जूरियस डेली रूटीन, मजा ज्यादा करते हैं, मनोरंजन ज्यादा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जहां पे आप रहते हैं वहां की कंडीशन ठीक नहीं है, फ्री टाइम में जो एक्टिविटी करते हैं वो सही नहीं है, और आपके परिवार में झगड़ा है। आप जहां पे कम्युनिटी में रहते हैं वहां पे आपके परिवार का झगड़ा है, उसके वजह से आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रभाव आता है, उसकी वजह से भी ओवरलोडिंग होती है। दैट कैन आल्सो लीड टू ओवरलोडिंग। सोशल फैक्टर, आज 10 बजे एक के साथ मीटिंग, 11 बजे दूसरे के साथ, 12 बजे इधर, एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। फ्रिक्शन इन द फैमिली, फादर चाहता है कि आप डॉक्टर बनो, आप कहते हैं मैं तो खिलाड़ी बनूंगा। आपके साथ परिवार में फ्रिक्शन है। आप जो भी स्टडीज करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, वो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अनसेटिस्फाइड प्रोफेशन और स्टडीज, जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। आपके साथ जिनके साथ ट्रेनिंग करते हो उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। আপনার সম্বন্ধ जो অনেক খেলোয়াড় আছে আপনার in your sport, you do not have a good relation with them. Overloading in professional work and studies, जो भी आप ऑफिस में काम करते हो वहां लोड बहुत ज्यादा है, पढ़ते हो वहां लोड बहुत ज्यादा है, और फिर जब आप ट्रेनिंग करने आते हो यू आर ऑलरेडी टायर्ड, आप अपनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर पाते हो, और फिर आपका जो परिवार है वो आपको सपोर्ट नहीं करता है। फादर कहता है इंजीनियर बनो, तुम कहते हो मैं खिलाड़ी बनूंगा, पेरेंट्स में आपस में समस्या है, और वो आपकी साइकोलॉजी को प्रभावित करती है। एंड टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट, अनेक मनोरंजन, बहुत ज्यादा मनोरंजन करते हैं, ट्रेनिंग की तरफ ध्यान नहीं देते, उससे भी ओवरलोडिंग होती है। एंड देन योर नेक्स्ट फैक्टर, हेल्थ फैक्टर, फीवर है, ओहो सॉरी, just a minute please. Health factors, you have fever, you have bad stomach, you have infectious disease, और आपको इंजरी है। ये इनको लेके भी आप अगर ट्रेनिंग करते रहेंगे आपको ओवरलोडिंग की समस्या हो सकती है। ये जो 2, 3 और 4 फैक्टर है ये ट्रेनिंग से बाहर है। सो ट्रेनिंग सिर्फ 25% आपको ओवरलोडिंग की समस्या करती है, 75% ओवरलोड की समस्या ट्रेनिंग से बाहर है। अब आप देखिए व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड। लक्षण, ओवरलोड कैसे पता लगेगा कोच को कि ओवरलोड हो गया? नंबर 1, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, मनोवैज्ञानिक कारण। 9 factors are there, they are all psychological.
बट मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। जब तक साइकोलॉजिकल लक्षण आपको नजर आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को कुछ नहीं होगा, लेकिन कोच के लिए यह निर्देश है कि जब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स नजर आते हैं, कोच के बुझते হবে कि আমার খেলোয়াড় জন্য কিছু সমস্যা হওয়ার संभावना আছে। ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जब तक नजर आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर खराब प्रभाव नहीं आता, लेकिन ये कोच के लिए एक सिग्नल है कि मेरे खिलाड़ी के लिए कोई समस्या होने वाली है। सो जब खिलाड़ी ट्रेनिंग करता है, कोचर नजर 8-9 पॉइंट ऊपर थक गए। When sports person is training, the coach will focus on these 9 factors. एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजित हो जाता है खिलाड़ी, हिस्टेरिकल हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस करना शुरू कर देता है। जब कोच उसको क्रिटिसाइज करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, डिप्रेशन में आ जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसका मोटिवेशन कम हो जाता है, प्रोत्साहन कम हो जाता है। ये फैक्टर जब ओवरलोडिंग होती है, सबसे पहले ये फैक्टर नजर आते हैं 9। अगर इसी के दौरान कोच समस्या का समाधान कर लेगा, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ओवरलोडिंग नहीं होगी। अगर वो ये 9 फैक्टर को नजरअंदाज कर देगा, फिर परफॉर्मेंस सिम्टम्स आएंगे, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर खराब प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, उसके टेक्निक में, स्किल में गलती होनी शुरू हो जाएगी, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, पार्थक क्षमता नेमे जावे, पार्थक करार क्षमता, डिक्रीज डिफरेंशिएशन एबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी रिकवरी सही से नहीं होगी, कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होगा, वो कंपटीशन में जाते ही हार मान लेगा, सरेंडर कर देगा, और उसका बिहेवियर, ओनर बिहेवियर कंपटीशन मध्य ठीक থাকবে না। ही विल कमिट फाउल्स, रेफरी से आर्ग्यू करेगा, किसी से भी आर्ग्यू करेगा। वो तब होगा जब ऊपर के 9 पॉइंट आप उनको नजरअंदाज कर देंगे, देन दे विल चेंज टू परफॉर्मेंस सिम्टम्स। अब यहां पे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर खराब प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट वन, अगर आपने परफॉर्मेंस सिम्टम्स को भी छोड़ दिया, उनको कंट्रोल नहीं किया, then you come to a third stage which is very dangerous. অনেক খারাপ somatic functional symptoms. Somatic means शरीर सारा शरीर का काज जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम्स, आपके शरीर का फंक्शंस सब खराब हो जाएगा, सो नहीं पाएंगे, भूख नहीं लगेगी, शरीर वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, खाना हजम नहीं होगा, बार बार चक्कर आसबे, एंड बार बार आपको इंजरीज होगी। दिस थर्ड स्टेज इज वेरी डेंजरस। सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम में शरीर के जितने भी सिम्टम्स हैं, सिस्टम्स हैं, जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और सभी सिस्टम काज खराब हो जावे। तो ये 7-6 चीजें हैं। नींद नहीं आएगी प्रॉपर, भूख नहीं लगेगी, वेट कम होता जाएगा, जो खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वॉमिटिंग होगी, चक्कर आएगा, और आपको बार बार इंजरीज होंगी। ये कब होगी? नंबर 1 भी छोड़ दिया, परफॉर्मेंस सिम्टम को भी नजरअंदाज कर दिया, देन यू विल कम टू अ थर्ड स्टेज, which is not a good stage, it is a very bad stage. And
जब सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम्स नजर आते हैं, देयर आर फ्यू स्पोर्ट्स पर्सन जिसमें उनका डेथ भी हो गया सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम्स में। देयरफॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जब खिलाड़ी ट्रेनिंग करता है साइकोलॉजिकल लक्षण ऊपर अपना ध्यान रखना है आपने, वहीं पे लोड को कंट्रोल करिए, समस्या का समाधान करिए, परफॉर्मेंस सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। एंड नाउ ओवरलोडिंग हो गई, मान लिए ओवरलोडिंग हो गई, तो आपने कैसे उस ओवरलोडिंग समस्या का समाधान करना है। हाउ टू, व्हाट वी से, हाउ टू कंट्रोल और टैकल ओवरलोडिंग, हाउ टू टैकल ओवरलोड। अगर ओवरलोडिंग हो गई है खिलाड़ी की, तो आपने कैसे उस समस्या का समाधान करना है, उस समस्या को ठीक करना है। नंबर 1, যদি কোচের নজর ও সাইকোলজিক্যাল সিমটমস উপর থাকবে, যদিও সাইকোলজিক্যাল লক্ষণ নজর আস দেখবে, ওইখানে যদি সমস্যাটা সমাধান করে নিবে, ওভারলোডিং হবে না। Number 2, as soon as coach is able to see the symptoms of overload, कोच कन्विंस हो गया, कोच को पता लग गया कि मेरे खिलाड़ी के साथ ओवरलोडिंग हो गई, तो 4 चीज करना है। नंबर 1, ट्रेनिंग लोड के कमाते हो गए। नंबर 2, भालोर खाबार दिवेन, फिजियोथेरापी कराबेन, मसाज कराबेन, एंड जनरल एक्सरसाइज रिकवरी को तेज करने के लिए करना पड़ेगा। नंबर 3, गाइडेंस ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर, स्पोर्ट्स डॉक्टर से संबंध करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से संबंध करना पड़ेगा, और एक्सपर्ट से संबंध करना पड़ेगा कि समस्या का समाधान कैसे करना है। एंड नंबर 4, उस खिलाड़ी के पेरेंट्स और उसके माता पिता के साथ और जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं उनके साथ संबंध करना पड़ेगा, ये देखने के लिए, पता लगाने के लिए कि ओवरलोडिंग क्यों हुई। क्यों, यदि आपने ये जानबेन ना कि लोडेर ओवरलोडेर फैक्टर की आसे, तब तक ओवरलोड की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। ट्रायल्स एंड कंपटीशन को खत्म, नो कंपटीशन, उसको बंद करना पड़ेगा बिल्कुल। नंबर 4, कोच जो है उसके फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करके, उसके कलीग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्पोर्ट्स डॉक्टर के साथ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करके उस समस्या का कारण क्या है उसको पता लगाने का प्रयास करेगा। कि जब तक समस्या का कारण नहीं ढूंढेंगे, आप ओवरलोडिंग की समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। सो ऑल दीज पर्सन्स, उसके साथ जो ट्रेनिंग करते हैं, जो उसके दोस्त हैं, उसके पेरेंट्स हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, उनसे कंसल्ट करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि ओवरलोडिंग का कारण क्या है। 5, वो कहता है ओवरलोडिंग कॉजेज शुड बी रिमूव्ड, आपको ट्रेनिंग को बदलाव करके उस ओवरलोडिंग के कारण को हटाना पड़ेगा। जब तक आप उस ओवरलोडिंग के कारण को नहीं हटाएंगे, तब तक उसकी ओवरलोडिंग की समस्या ठीक नहीं होगी। एंड नंबर 6, द ट्रेनिंग इज टू बी रीस्टार्टेड विद ए रिवाइज प्लान, आपनार नतून ट्रेनिंग प्लान तैयारी करते होबे, नतून चेंज करे, लोड के एकटू कम राखे, नतून ट्रेनिंग प्लान तैयारी करबेन, एंड आबार ट्रेनिंग स्टार्ट करबेन नतून ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। लाइक दिस द प्रॉब्लम ऑफ ओवरलोडिंग कैन बी टैकल्ड। এইখানে আমার লেকচার শেষ হচ্ছে।
over to your teachers. Okay, thank you very much, sir. Yes, sir. Amar, Uh, Amar, I think you have understood what I wanted to share with you. স্যার স্যার একটুখানি যদি Okay. ক্রিটিক্যাল বলা হতো খুব ভালো হতো স্যার हाँ দিদি একটুখানি যদি একটু দিদি বলা হতো খুব ভালো হতো एक टू दीदी, आई एम एक तो- बुझते पारे नहीं স্যার ক্রিটিক্যাল सर লোড স্যার थोड़ा Critical एक load- मिनट एक मिनट हाँ अभी तक আমি আপনাকে বোঝাবো কেন বলেছে instead of overload हाँ सर we follow now critical load. Critical load जो समस्या ओवरलोड करे वो समस्या क्रिटिकल लोड को लिए होय ना. Now what is critical load? Critical load is more load than what the sports person normally takes. But what we do when we give more load, we make the recovery period slightly longer. विश्राम का जो पीरियड होता है उसको थोड़ा लंबा कर देते हैं तो ओवरलोड की समस्या नहीं होती है. आपको एग्जांपल दूंगा. आज आपने डिसाइड किया कि मैं खिलाड़ियों को उनकी क्षमता से अधिक लोड दूंगा. আমি আজকে ট্রেনিং সময় खिलाड़ी খেলোয়াড়কে বেশি লোড দিব. So what you will do, suppose in the evening you have given them more load than their normal load. Next day morning আপনি অফ করে দিবেন. আবার আসবে ট্রেনিং জন্য বিকালে. So 24 hours rest or 12-hour rest or 10-hour rest, whatever is required by them, you have to give it. Even 24-hour rest also is required. That has to be given so that the critical load is more than the normal load of the person. तो उससे क्या होगा, उसका रिकवरी हो जाएगा. जब रिकवरी हो जाएगा तो ओवरलोड की समस्या नहीं होगी. ओवरलोड होता कब है, आप लोड बेशी देते हैं, उसकी रिकवरी नहीं होती, फिर बेशी लोड दे देते हैं, रिकवरी नहीं होती, फिर बेशी लोड ওই জন্য সমস্যা একটু একটু করে বড় হয়ে যায় এন্ড খেলোয়াড় ও লোডের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না. হ্যাঁ স্যার একদম बहुत बहुत धन्यवाद सर বুঝা आपको গেছে এখন? है सर নিতু দি শোনা যাচ্ছে Yes, yes. नीतू বুঝা গেছে? नीतू হ্যাঁ हाँ স্যার सर समझ गया कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ गई सर थैंक यू सो मच सर ओके नाउ हाँ, सर मैं so many students are there. अभी तक They हम are- आज को जो चर्चा किए हैं सबका डाउट कोई हो सकता है. I can send my PPT and then maybe আপনি বাংলা ট্রান্সলেশন করে আবার ওনাকে পাঠাতে পারবেন. আমার I have no problem in sharing my PPT. नमस्कार सर सर अभी तक चर्चा किए एक मिनट, there is somebody's mic is open, I think. सर अभी तक जो चर्चा हाँ। किए हैं लोड का टाइप, आउटर लोड, इनर हाँ। लोड, एडेप्टेशन प्रोसेस के बारे में बताया. सर ने कंडीशन ऑफ एडेप्टेशन के बारे में बताया. लोड एंड रिकवरी का रिलेशनशिप, हाँ. ओवरलोड, कॉजेस ऑफ ओवरलोड, सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड और हाउ टू टैकल ओवरलोड, इसके बारे में सर विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं. अभी तक हमारे साथ दूसरा चरण में जो स्पीकर थे प्रोफेसर परिमल देवनाथ सर, उसके बाद स्पीकर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर किशोर मुखोपाध्याय सर, ओके. प्रोफेसर श्यामल मजुमदार सर, डॉक्टर महाप्रसाद घोष सर, सभी आज का इस सेशन में पहले से अभी तक जुड़े हुए हैं. सभी को लेट मी टेल यू, एक बात मैं बताना चाहता हूँ. जिनका भी आपने नाम लिया है ना,
जी सर। और सभी हमारे छात्र सभी को हम प्रणाम करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को ओपन करता हूं। अगर किसी का मन में कुछ शंका है तो सीधा अनम्यूट कर सर को सीधा पूछ सकते हैं। सर यस बोलिए। ये जो टैकल ऑफ ओवरलोड है ना, वो जो स्लाइड था, वो क्या वन टाइप ऑफ रिमीडियल मेजर ऑफ ओवरलोड? कौन सा? सर वो टैकल बता ऑफ रहा है ओवरलोड। लास्ट स्लाइड में हाउ टू टैकल ओवरलोड के बारे में जो आप बताया। हाँ, वो है कि ओवरलोड हो जाए तो ठीक कैसे करना है। अगर आपके खेलवाड़ के साथ ओवरलोड हो गया वो आपने ठीक केमन करबे। যদি ওভারলোড হয়ে গেছে ও কেমন সমস্যা সমাধান করা যাবে, বুঝছেন আমার কথা? एकदम सर। वो क्या वन टाइप ऑफ रिमीडियल मेजर ओवरलोड हो सकता है क्या? नहीं, रेमेडियल मेजर तो अगर आप लोड करेक्ट कैलकुलेट करेंगे, रिकवरी करेक्ट देंगे तो समस्या होगा ही नहीं। समस्या तब होता है जब आप लोड कैलकुलेट नहीं करते हैं, कितना रिकवरी देना चाहिए नहीं देते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मेरा खिलाड़ी 10 दिन में इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाए, उसको ज्यादा लोड देते हैं उसकी क्षमता से, तो वो तो फिर आपका गलती है ना एज ए कोच और एज ए टीचर। हर खिलाड़ी का लोड लेने का क्षमता अलग अलग होता है, वो कोच को कैलकुलेट करना पड़ता है। कितना लोड दें, उस लोड देने के बाद कितना रिकवरी करें, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। you will be successful as a coach only when you work as a scientist। যদি वैज्ञानिक भावे আপনি কাজ করবেন, আপনার খেলোয়াড়কে আপনি ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল খেলোয়াড় তৈরি করতে পারবেন। যদি পাগল হয়ে আপনি কাজ করবেন कि আমি তো আপনার খেলোয়াড়কে এক মাসের মধ্যেই ইন্টারন্যাশনাল খেলাড়ি তৈরি করে দেব, ও করা সম্ভব না। You will have problems of overload. Sir, बहुत what is धन्यवाद the सर आपको। what is the difference between overreaching and overload? Overreach. Yes, sir. Overreaching. Overreach is अपनी क्षमता से ज्यादा ऊपर पहुंचने का कोशिश करना। ओवरलोड कोच ट्रेनिंग लोड बनाता है, वो उसकी क्षमता से ज्यादा करता है। खिलाड़ी अपनी क्षमता से अधिक पहुंचने का क्या कोशिश करता है, उसको ओवररीच बोलेंगे। पोल वॉल्टर है, आप कर सकते हैं 5.30 सेंटीमीटर, आप कहते हैं 5.45 करूंगा। ओवररीच करने का प्रयास करते हैं और वो 5.5 भी नहीं होता एंड यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। अपनी क्षमता से अधिक जाने का प्रयास करना इज ओवररीच। Thank you, sir. लेकिन ओवरलोड की समस्या सिर्फ कोच की वजह से नहीं होती, खिलाड़ी की अपनी समस्या से भी हो सकती है। कोच तो सही लोड देता है, आप जब घर आते हो तो गाड़ी उठाई और घूमने चले गए, रात को 1-2 बजे तक घूमते रहे, लड़कों के साथ सिगरेट पिया, शराब पिया और रेस्ट किया नहीं, तो उससे भी ओवरलोड हो सकता है। ओवरलोड की समस्या सिर्फ कोच की गलती से नहीं होती, ओवरलोड की समस्या खिलाड़ी की वजह से भी हो सकती है। ओवरलोड की समस्या पेरेंट्स की वजह से भी हो सकती है। आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, फादर कहता है नहीं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आपस में झगड़ा पड़ता है, उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे भी ओवरलोड हो सकता है। ओवरलोड का कारण बहुत है। डॉक्टर किशोर मुखोपाध्याय सर को क्वेश्चन पूछने के लिए और सर को उनका मन को शांत करने का जो आंसर है दिए है, इसलिए दोनों सर को हम प्रणाम करता हूं। अभी हैंड रेज किए हैं समरेश जाना सर। सर आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन सर को पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर माय क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरलोड। एक स्लाइड है, इसके अंदर नंबर 3 पॉइंट है ना, 3 नंबर पॉइंट को सर प्लीज और एक बार डिस्कस कर दीजिए एग्जांपल के साथ। थर्ड पॉइंट हाउ है, टू टैकल। फर्स्ट पॉइंट इज लोड एज पर लोडिंग एबिलिटी। सेकंड पॉइंट है रिकवरी इन प्रोपोर्शन टू लोड। थर्ड पॉइंट है नहीं सर, 3 नंबर पॉइंट है कंपटीशन और कुछ था, हमारे पास स्लाइड तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया। नहीं, कौन सा कंपटीशन के हाउ साथ टू टैकल ओवरलोड में? यस सर हाउ टू टैकल ओवरलोड। उसके अंदर कंपटीशन जो एंड 3 पॉइंट ट्रायल्स है, टू बी अवॉइडेड, वो कहता है कि अगर खिलाड़ी के साथ ओवरलोड हो गया तो उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन का डिमांड्स बहुत हाई होता है। ओवरलोड में पार्टिसिपेट करेगा उसको और ज्यादा समस्या होगी। जिसको ओवरलोड हो गया वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ट्रेनिंग कर करके उसको फिर उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा जिस लेवल पे वो पहले था। सो कंपटीशन एंड ट्रायल बंद नहीं करेगा। जब ओवरलोड को टैकल कर रहे हैं, ओवरलोड समस्या यदि आप ठीक करते चाहें, वही समय he or she will not participate in competitions। जो कंपटीशन का डिमांड्स और ज्यादा होता है उसको ओवरलोड का और ज्यादा समस्या बढ़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद समरेश जाना सर को। अभी हैंड रेज किए हैं संदीप, एस के जे संदीप, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संदीप सर, हाँ, कुछ पूछिए। रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं प्रोफेसर परिमल देवनाथ सर को आग्रह करूंगा इस अवसर में भाग लेने के लिए। सर, हर एपिसोड में सर उपस्थित रहता है। सर, आपको बताता हूं, आपके जानकारी के लिए, ये सर पहले दिन से अभी तक हर एपिसोड में उपस्थित रहकर कुछ ना कुछ हम सभी को ओके परिमल शेयर करते हैं। तो सर को आग्रह करता हूं, सर अनम्यूट करके। প্রণাম স্যার। কেমন আছেন ভাই? হ্যাঁ, ভালো আছি স্যার। আমার প্রণাম নেবেন? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনি I তো must, আমার অনেক ফেভারিট স্টুডেন্ট পরিমল yes দেবনাথ। sir, I remember. I must extend my heartfelt thanks to the organizers to give us this rare opportunity once again to see our respected and beloved sir live. I consider myself an odd person in respect to this highly technical aspect of today's lecture. I do not know much about overload, then adaptation, and then recovery. I am not concerned about that. I do not find and consider myself fit for this. But one question, sir, that is, when you said that there are different types of symptoms of overloading. Okay. And those symptoms are to be understood by the coach. My problem is with the coach. Coach, sports person's parent, everybody has to understand that. Yes, my main problem is with the coach. By the parents. Yes, sir. My main problem is with the coach. Even if the coach understands the different types of symptoms, and especially the psychological symptoms. Now, who will tackle the coach? Coach considers himself mostly as a Spider-Man or Captain America. He considers that he knows everything. I have understood your question. Yes, you sir. See, those days are gone when coach alone used to solve all the problems of the sports person. Today you need a team. That team's most important person is the coach. All others are sports psychologists, sports scientists. There will be a team of 8-10 persons working with the sports persons. उसमें exercise physiologist भी होगा, sports psychologist भी होगा,
किन एंथ्रोपोमिस्ट भी होगा, बायोमैकेनिस्ट भी होगा, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिस्ट भी होगा, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स भी होगा, किन एंथ्रोपोमिस्ट भी हो, सारे टीम बना के काम करते हैं. Yes, sir. That is true. In case of high level sports performance, a team works. But what we see in our day to day experience tells that in a state level competition and a district level competition, generally the coach plays the most dominant role. Yeah, And in that case, the coach is much reluctant to have advice from the persons, as you told, who belong to a team, a sports psychologist, sports medicine people, and so on and so forth. He never wants to talk to them. And in that case, what to do? I fully agree with you. In fact, the problem is the coach thinks I am the master of my grounds. Sports scientist thinks I have PhD. Why shall I go to the coach? Coach should come to me. In our country, this is a very big problem. Yes, sir. This conflict goes on between coaches and sports scientists in our country. And that is one of the problems. That one of the reason why we do not have the kind of sports scientists we need. Exactly. You see, Chopra, our javelin thrower. Yes. World champion, Olympic champion, and another meet he won recently. He is working under a German coach who is a great biomechanist. What he has done, he has changed his technique. He is adopting a skill of bow and arrow technique, which is supported by biomechanics, and his work is done. After winning the gold medal in Olympics, he gave in writing to the government, I want to work under the same German coach. So that is where our problem is. I have seen that problem in Patiala. I have seen that problem in Bangladesh, because when I was in Bangladesh, I invited six coaches from Patiala, and we had sports scientists also. Our coaches and sports scientists from Patiala, and these coaches of Patiala and sports scientists never sat together. And then I was in charge of them. I made a rule that in the evening, in rotation, sports scientists will go from one field to another, and that developed bonding between them, and problem was solved. हमारे देश में प्रॉब्लम है, कोच कहता है कि मैं तो अपने ट्रैक का मालिक हूं, आई एम लॉर्ड ऑफ माय फुटबॉल ग्राउंड, व्हाई शैल आई गो टू द साइंटिस्ट? साइंटिस्ट थिंक्स दैट आई हैव पीएचडी, मैं इसके पास क्यों जाऊं? प्रॉब्लम है. This problem has to be solved. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir, once again. Pranam, sir, once again. Right. I was thinking, nice. sir. One minute, Parimal. Yes, sir. I came to West Bengal couple of times for presenting papers, and each time I had three things in my mind that I wanted to meet my students. I did meet Dr. Banerjee couple of times. Yes, sir. I met also Hiranal Adhikari couple of times. Yes, sir. I met other students also, but I did not meet you whenever I came to. I think I don't remember. I am also an old man now. I don't think we met in West Bengal. Yes, sir. This is fact, sir. Bengal. Yes. So anyhow, I will see that. I'll keep this in mind.
and maybe when I come to West Bengal next time, I must see you. I must meet you. I must see you in person. Okay. Now, so long I was thinking that I am again sitting in the classroom where you are delivering your lecture. Okay. So nice of you. I am always proud of my students like you. Okay, thank you, sir. Thank you. Over to organizers. Right. Thank you. Neetu, can we wind up the class now? AK Bose has a question. Please take his question. Question. हाँ हाँ You can write the question and send to me. I'll send a written reply. Okay. Okay. Okay, sir. Principal sir की बोलছেন? सर I'm requesting Professor Asim Kumar Bose. Professor Asim Kumar Bose. Say something about this session. He is present here, I think. ओके सर बोस हाँ असीम कुमार बोस सर Yes, Asim Kumar Bose. हाँ बोस तो बदमाश आदमी है ओए बदमाश सर He असीम will सर say something. I am requesting you to Professor Asim Kumar Bose. That is what मैं उसको बदमाश बंदा बोलता हूँ. He was my favorite athlete. Hardler. My most favorite athlete. तो उसको वो very naughty boy. Boss. यस सर नमस्ते. नमस्ते कैसा है? बस सर आपकी सर बड़ी दिन के बाद आपसे मिले, आपका बात भी सुने हैं. तो इनफैक्ट यहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम जो अभी सर परिमल देवनाथ से आपने मिले, वो तो सर वो दीवार के पास एकदम छुपे रहता था क्लास में, वो आपका सर स्टूडेंट है. लेकिन सर जो बात है यहाँ पे, ही सर परिमल देवनाथ इज हेडिंग द एथलेटिक कोचेस एसोसिएशन ऑफ बंगाल एज ए प्रेसिडेंट. सर उनका एथलेटिक्स नहीं किया सर, उसने नहीं किया. फिर भी एनीवे तो एक्चुअली यहाँ पे जो जूनियर एथलेटिक्स का टीम बनता है, हर स्टेट का जो बनता है, चाहे उसमें रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड कॉम्बाइन इवेंट्स भी रहते हैं. तो एक इंस्टाग्राम यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स भी है, उनको ये बताना है कि एक जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का जो टीम बनता है उसमें कितना कोचेस रहना चाहिए. डायरेक्टली रनिंग के लिए, जंपिंग के लिए, थ्रोइंग के लिए टीचर्स आर देयर, they have been trained, they have their coaching degrees and they have long experiences in the field of or in the athletics area ना. तो इनको सर ये बोलना चाहिए कि तुम्हारे जो टीम बनेगी उस टीम में तुम्हारा कितना कोचेस होना चाहिए. यहाँ पे भेज देता है एक कोच जाओ, एक मैनेजर जाओ, एक लेडी मैनेजर जाओ, खत्म. तो आई हैव सीन इन द नेशनल मीट्स आल्सो इन द जूनियर नेशनल्स और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो गेम्स होते हैं, सेम थिंग होते हैं सर. यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो टीम भी आता है, यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बर्डवान यूनिवर्सिटी, कहीं के भी देखिए एक ही कोच जाता है. लेकिन हमारे जो कंटिंजेंट जब बाहर जाते हैं, चाहे एशियन गेम्स, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स या इंटर और भी जो टूर्नामेंट्स होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन, वहां पे वी कैन फाइंड दैट यू सेड दैट ए टीम शुड बी देयर, बट दैट टीम शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट टेक्निकल एंड साइंटिफिक पर्सन्स. Of course, you see. But the number, of course, you see. But the number. I understand what you are trying to ask. You see, exactly. What happens? This is not only in India. This problem is in other countries also. When you have school level sports persons, you know, then you see in their training process, they should have a team of sports scientists working with them. But when the team has to travel, अगर आप बोलोगे somebody's mic is on, I understand this problem is not only in India, it is in many countries, including some of the developed countries also. You see, I have worked in Australia for some time. I worked in Mauritius for some time. I was in Australia teaching their university students for about 7 weeks. There also I noticed the same problem. So I understand the जो बेस होता है, बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए.
और बेस बनता है स्कूल लेवल में, अर्लियर लेवल में. बट इन ए कंट्री लाइक आवर्स, एक स्कूल है, इसमें एक ही टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, 2000 बच्चे, एक ही टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है. What he see, these are some of the problems. Or there are 2 teachers of physical education, one male and one female. और वो जो एथलेटिक्स का टीम जाना है, दोनों को एथलेटिक्स के बारे में लिमिटेड नॉलेज है. तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी आशिम. these problems are very difficult to remove, but I would say that if need be, on certain occasions, maybe a sports psychologist or a biomechanist or a kinanthropomist can be invited, or a sports psychologist can be invited to give them a talk. But at school level, it becomes so expensive even for the school and also by the education directorate to have so many experts with them. So this problem is not in our country alone. This problem is in many countries. So ये problem तो रहेगा. You have been working with me. We used to go for the intervarsity and all. एक कोच आता था सबके साथ, मालूम है ना? पता है वो बोस जी सर, पता भाई, है। ये भाई असीम भाई थोड़ा मुंह तो दिखाओ. दिख रहा है ना, दिख रहा है. So Ashim, this is I can recognize Parimal also. I can recognize Kishore also. I can see here. I can see Bose also. ये सबसे आखिर में है. And Neetu I can see very clearly. And you see, these limitations are not only in India. These are in many countries. So these problems are to be tackled. Now, अगर आप सोचो जी बहुत लो लेवल से ही साइंटिस्ट मिल जाए, you can have a team of scientists who can come occasionally and help you out, but attach करना permanently, I don't think any country does that. लेकिन सर ये तो डिजायरेबल होना ही है, नहीं तो जो हम देखते हैं जो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो तो नीचे से ही. I understand. That is what I am saying. Exactly, sir. See, पहले तो हमको ये करना है कि the coach should accept the presence of the sports scientist, and sports scientist should also think that this coach also has knowledge. वो तो आपस में don't come on the common platform. Banerjee साहब नमस्कार. Namaskar. How are you? See, actually, I am in Arunachal Pradesh, Itanagar. Oh. So at the beginning, when it was started, I could not connect through internet. And from 8 o'clock, I am listening to your call. So I have just one thing to say, that the students and who were not the benefit to be your teacher are lucky that they found an opportunity to listen to one of the best teacher in this area in the country. So that way, Alapon's program is very, very successful that they could pursue you to deliver a lecture on this. I never refuse my students. You see, whatever knowledge I have, it is meant for the students only. And yes. And I waited for you in Cuttack. You said you were busy somewhere else. No. See, I had many other programs at the age of 76. बोस भी नहीं आया. बोस भी धोखा दे गया. सर मुझे आना था लेकिन जा नहीं पाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. Okay. And Kishore was there, Neetu was there, and then the principal, Mr. Prasad was there. Right, we had a good time in Cuttack. Sir, आपके और एक स्टूडेंट हैं, दिलीप कुमार बंदोपाध्याय was not well. He is also open his camera. You can see and you can recognize him, perhaps. Where is that? Yes, I can recognize. I am here, sir. Recognize, yes. How are you, sir? I am all right.
Due to God's Pranam, grace, sir. Pranam. I have So, nice seeing all of you, hail and happy. And I am yes. now trying to make a program to come to West Bengal and meet all of you personally once. So Before we'll I be kick really off, happy. Most We'll welcome, be sir. really Most happy welcome. if we get such opportunity. so Sir, I was thinking that it was some sort of action replay because Mr. Mathai was teaching us sports training. When Mr. Mathai left, you started in our master's course sports training in our class for the first time. but you know that Mr. Mathai is no more. And we happen to be your first student, master's course student in sports training. Right. So But I hope you know Mr. Mathai is no more. Yes. I know. We are aware. I know. Okay. Mr. Mathai is no more. Dr. Robson is no more. I know. Everybody is gone. Everybody. Last was Mr. Sathe. Mr. Sathe is no more. Then Sarmaji was. He died many years back. You know. I met One Mr. of your Mathai. classmate, Dr. Upal, Omio Kumar Saha, who was in our department, he also has passed away on 1st December. Oh, very sad. Yes. At the age of around 85 or so. He was elder to me. And we attended yoga course together in Yes. Lonavala. And MPed also. I feel very sad. Mani Singh is no more. I know. They are all gone. You know. I met Mani Singh sir when I was in Gwalior long back. Okay. So very happy to see you sir after a long time. Everybody is in the queue. Please, please, that is natural. That is natural. Sorry to So I'm Neetu and Mr. Deva Prasad. Because of you, I have been able to meet my colleagues and my students. Yes. And I am always proud of them. और सर आपके सारे स्टूडेंट का फेस इतना ब्राइटन है कि हमारे सर रह चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर. कम से कम एवी सर, बीकेवी सर, असीम सर, किशोर सर. You organize a seminar in West Bengal. Yes. And before I kick off, I actually want to meet all of them. We are ready, sir. We are ready, always ready. I must We are ready, but who will build the cat? Who will organize it? Some organization, I don't know. Let some physical education department of West Bengal organize this seminar or workshop. Which department? प्रथम में बीच में बात करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. हमारा अध्यक्ष महाशय डॉक्टर देव प्रसाद साहू सर उपस्थित है. तो सर का सोच में है एक इंटरनेशनल सेमिनार हमारा महाविद्यालय करने के लिए. तो सर को इस मंच पे कुछ बोलने के लिए हम आग्रह करेंगे. सर इस मंच पर साहू कर सकता है, लेकिन और कोई डिपार्टमेंट अभी ऐसा तैयार नहीं है. They are not interested to organize such a program. Dev Prasad Sahu is exceptional. He can do it. Sir, website can do it. Sir, yesterday Dr. Deva Prasad, you can contact organize. Kishore. Yes, sir. Our college is going to organize that type of international seminar. But our college having little bit seminar hall, little bit problem. We are trying to solve the problem as early as possible. You please organize this in Calcutta. You manage in a small area. You Deva contact Prasad, you organize this to Calcutta, in Calcutta. Sir, we can organize it in Calcutta with the help of website. We can able to organize it. No problem. Yes. Only Yes. the support is required, sir. I want to That is speak a bit. possible. Sir, না yesterday আমার we had কলেজটাকে দেখতে হবে, আমার And কলেজটা তো there are আপনাদেরকে সবাইকে আসতে হবে. রিমোট এরিয়া There বলে are আপনারা we may provide you for car for vehicle. আমার কলেজটাকে দেখে তো আপনাদেরকে গাইড করতে হবে যে এরকম এইভাবে ঠিকভাবে করতে হবে. yesterday সব we থেকে had a পুরনো কলেজ. website, and what I learned, Mr. Deva Prasad, you please contact Dr. Alok Banerjee, Dr.
Ashim Kumar Bose, and then all others who are sitting, my students, they will help you out. Contact Kishore, and they will tell you how to manage this. You Dilip Bandyopadhyay, you can contact him, and then Parimal Devnath is there. You contact them, and then they will tell you how to manage this. What I have learned that in the next month, in January, Vishwabharati is going to organize a national seminar. Sir, I can approach to Dr. Sudarshan Biswas to think over the matter. Okay. I think how far is Shantiniketan from Calcutta? It's not much. It's around 250 kilometers. Sir, एक सेट दुर्गापुर एयरपोर्ट हो गया वहां पे अंडाल में. That is nearer to Shantiniketan, about 70 kilometers. कोई problem नहीं है. That is I give you, if I am alive by then, I will definitely come. Sir, ekdam. Sir, I'll talk to Sudarshan today. Because I want to meet all of you sometime, and it's always a pleasure. I remember when Professor Banerjee came, he was in my house, that day when he became a faculty member in Gwalior. Sir, that is 1981, sir. I know. And no, 78. 77. Ashim Kumar Bose. That was the place where we used to meet in the evening. Yes. भाभी का चाय और वो आलू का बंडा बनता है बहुत अच्छा. वो still I remember. And then Bose, Sir, we can organize this. Sunday used to be in my house, खन्ना के साथ. अमरूद का पेड़ भी कट जाता था. Sir, और नींबू का पेड़ खाने के लिए. Sir, we can organize this conference in Calcutta also. In the month of March. Organize करिए. Dr. Banerjee, you also had one association, which probably website will organize it. Yes. WCIC. Now Bose is president of that organization. Ashim Bose. क्या problem है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है सर. सेकंड अभी बनेगा सर. हम तो लेट सुन भी लिया, अभी बातें करते हैं. We may organize. And I can also get some more speakers. Sure. Some standard, so that you all get benefited by their presentations. Baki Deva Prasad, you tell him he's still a principal, he will be able to help you out. And any help needed, Kishore Mukhopadhyay ko pakdo. Sir, Kishore ka hai, har waqt hai. He is always there. He is quite active. Kishore. Yes, sir. Why don't you get together? No, I am here. पैफी के अंडर करो उसको करने के लिए. हाँ, पेफी एंड वेबसाइट दोनों मिलके हम लोग करेंगे कलकत्ता से. हाँ, करो. And all my students and my colleagues should be there. Okay, sir. हाँ. Definitely, sir. मैं तो अपना अध्यक्ष महाशय को अनुरोध करेंगे. सभी तो शहर में होता है, टाउनशिप में होता है नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार. क्यों ना कि इस बार हमारा महाविद्यालय जो जंगल के अंदर आता है, तो हम अध्यक्ष महाशय को रिक्वेस्ट करेंगे इंटरनेशनल सेमिनार हमारा महाविद्यालय जो फॉरेस्ट के अंदर है, बहुत इंटीरियर एरिया में, इस सभी महानुभाव को आइए और एक साथ इस गैदरिंग को संपन्न करें. इस रिक्वेस्ट रहेंगे हमारा अध्यक्ष को महाशय की ओर से आप सभी को. Okay, it's great. But is there any good hotel nearby? Yes, sir. Sir, हो जाएगा. Then we can also able to conduct this conference in your college also with the help of PEFI and with the help of website. We can able to conduct this conference in your college, and if you want, it will be a international conference with the help of International Association of Physical and Sports IAPS. In this way, you are able to conduct it. Okay, you discuss these things. I am now feeling hungry. I have to eat my dinner. So, okay. সেটা ভালো নেই. আজকে হচ্ছে এটাকে একটু ব্র্যাকেট করে ভালো. So nice to meet you. I'm really very happy to meet all of you.
Okay, Dr. Uppal, many thanks. Right. Nice meeting you. Be safe and secured. Right. Thank you very much. My regards to all your Thank you, family sir. members and everyone. Sir, stay healthy. Sir, stay healthy. Happy New Year, sir. Okay, right. Sure. Thank you very much. So nice of you, and Thank you. Sir, nice that you you should, called me, and I have been able to meet all my students and my colleagues Vote of who are in thanks, sir. West Bengal. So nice. and of you. sir, Thanks a lot. you should keep yourself alive till we meet in Calcutta. Okay. Request to our last vote of thanks. मैं सभी इस महानुभाव को हमारा महाविद्यालय सेवा भारती महाविद्यालय की ओर से तथा इस जो प्रोग्राम है सुस्थ देह सुस्थ मन एई आलापन, इस प्रोग्राम के तहत आप सभी महानुभाव एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में आज इतना पहले स्पीकर को एक साथ आए हैं, इसलिए सभी स्पीकर को अपना महाविद्यालय की ओर से प्रणाम करता हूं। और आज का जो मुख्य आलोचक रहे अरुण कुमार सर, उनको हमारा महाविद्यालय के छात्रों की ओर से, हमारा अध्यापक की ओर से तथा महाविद्यालय की ओर से सर को नमन करता हूं। और जितना भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आए हुए सभी अध्यापक और सभी शिक्षक, कोचेस, प्रशिक्षक सभी को, और खास करके जिसके लिए इस प्रोग्राम है उस विद्यार्थी जो आज इस प्रोग्राम से पहले से अभी तक जुड़े रहे हैं, सभी को नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। और जिसके चलते इस कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, अपना महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर देव प्रसाद साहू महाशय, जिसका कंट्रीब्यूशन इतना है ताकि हम एक साथ 100 से ज्यादा स्टूडेंट को इस वर्चुअल मोड में ला सके, इसलिए उनका एक शासन था, इसको जी सूट में बदल दो ताकि एक साथ ज्यादा विद्यार्थी आ सके। इसलिए हम सभी एपिसोड में 100 से ऊपर एक साथ कंटेस्टेंट को एक साथ ला पाते हैं। इसलिए अपना महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर देव प्रसाद साहू सर को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर नीतू दत्ता मैम, डॉक्टर मृत्युंजय दास सर, लेके सभी साथी को नमस्कार करता हूं, जिसके चलते हम थोड़ा थोड़ा करके आगे चल पा रहा हूं। नया साल के सभी को हृदय से, तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है। ऐसा करते करते हम लोग 2023 साल में जो शुरुआत किया था उसका 40 एपिसोड आज कंप्लीट कर चुके हैं। जो हम लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा है 100 एपिसोड का, उसका इस साल में 40 एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। ऐसा में जितना भी रिसोर्स पर्सन आए हैं सभी को फिर से एक बार नमस्कार और प्रणाम करता हूं। इसी चलते आज का कार्यक्रम में किसी का नाम नहीं लिया, ऐसा कुछ गलती हो गया, कुछ बोलने में तकलीफ हुआ, जो समझ में नहीं पाया, अगर कुछ गलत हुआ उसलिए तहे दिल से माफी चाहते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म करता हूं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। Good night to all. Thank you so much. Good night, sir. Good night to all. Thank you, Keshav sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, Uppal sir. Good night. Thank you, sir. Thank you. Uppal sir,